Okay, so let's not waste the time and let's start right from the topic itself. So after a long break, we are back here, and today we are going to talk about a topic that is reality about coding in industry and efficient LLM code generation. So basically, whenever a fresher joins a company, there is a big fear in his mind that okay, whenever I join the company, whether I have to write the code from scratch और आई हैव टू इम्प्लीमेंट द कोड मेरे से हो पाएगा क्या मैंने डीएसए क्वेश्चन किए 75 किए लीड कोड पे 150 क्वेश्चन किए क्या मेरे से कोडिंग हो पाएगा उधर नहीं हो पाया तो क्या होगा कि मेरे को निकाल देंगे कंपनी से तो दिस ऑल क्वेश्चंस वर देयर इन माय माइंड टू व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एंड ऑल की सॉफ्टवेयर कंपनी में जाने के बाद काम कैसा होता है तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बिल्डअप करेंगे इन द सेंस लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे काम करते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में तो पहली बात तो आपका प्रोजेक्ट आता है प्रोजेक्ट का ईएल साइन होता है ईएल के बाद आपका प्रोजेक्ट का रिसर्च पार्ट आता है रिसर्च पार्ट आने के बाद प्रोजेक्ट फाइनल होता है और उसके बाद आप प्रोजेक्ट पे काम चालू करते हो काम चालू करने से पहले सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर बोले तो प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी टेक ट्रैक पे काम करेगा किस चीज में कौन सा डीबी यूज होने वाला है वो सब तो एक ए वन बाय वन क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी नीड टू एड्रेस दिस डू आई नीड टू कोड फ्रॉम स्क्रैच व्हेन आई एंटर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दिस इज एक्चुअली बहुत डरावना क्वेश्चन होता है बहुत से फ्रेशर्स के लिए बिकॉज you know what say most of the people what they do is they memorize around 70-80 questions on lead code and they think okay मैं तो यार क्वेश्चन याद करके गया हूँ कंपनी में अब तो इधर मेरे से काम होगा या नहीं होगा आई डोंट नो so I'm gonna tell you one thing. If you are memorizing the questions, you are not going to survive for a long time. I'm not saying memorizing the questions is a bad thing, but at least you should have an understanding of how you are using the data structure. If I'm solving 20 questions of arrays on lead code, it's not necessary I must know each and every logic, but it's necessary I must know that why I am using two pointer method here, why I'm using sliding window here, why I'm swapping the variables, what's the reason behind the problem solving. So that you need to know. So the first question is, do I need to code from scratch whether I enter the software industry? The answer is maybe yes, maybe no. When I entered my firm, the project which I was allocated was a fresh project. So I have to build my code from scratch. The problem statement which was assigned to me was a fresh problem statement. And as I am an AI engineer, so as an AI engineer, there is a very big difference. So when you are allocated as a developer, your code base becomes very large. But when you are allocated as an AI engineer, your code base is small, as well as you have to do now code in bits and chunks. That means, and mostly your code will be running in notebook in separate tabs, rather than developers who will run their notebook in large amount of files. So do I know to code from scratch whether I enter the software industry? The answer is maybe at sometimes yes. But if you are allocated in a project which has been started from last to last year, then maybe first you will be given 2 to 3 weeks just to understand the code. Okay. So there should be no fear in yourself that okay मेरे को scratch से कोड लिखना पड़ेगा या फिर मेरे को कोड दिया जाएगा अगर scratch से नहीं भी लिखना है तो you will be given uh, ample amount of time to understand the code. Like my first project was a fresh one, so I do not got any significant amount of time for writing my fresh code. So I wrote my fresh code, and there were errors. I'm being honest. For around 1 to 2 weeks, I was just spotting out the errors. I used to not eat the tiffin itself बिकॉज मैं खाता नहीं था दोपहर को कंपनी में एरर्स आते थे बहुत सारे सॉल्व नहीं होते थे बिकॉज पहली बार कोडिंग कर रहे हैं पता नहीं कनेक्शन कैसे होता है पता नहीं प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट कैसा होता है पता नहीं एफिशिएंट प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं पता नहीं था कि फॉर्मेट भी होता है प्रॉम्प्ट लिखने का तो दिस ऑल थिंग्स आर नॉट टॉट अस इन कॉलेज जब हम कॉलेज में ये सब चीजें पढ़ाते नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में आप फ्रेश कोड लिखने जाते हो तो वेन एवर यू राइट अ फ्रेश कोड एट द बिगिनिंग देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत सारे बग्स आएंगे बहुत से इश्यूज आएंगे बट यू हैव टू टैकल दोज इश्यूज आप ऐसा नहीं है कि वो लेके आप बाजू में बैठ जाओ कि यार मेरे से तो हो नहीं रहा है मैं कंपनी छोड़ देता हूँ नो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को बहुत से इश्यूज आए मैं लिटरली
दो दो तीन तीन दिन बिना खाए भी बैठा हूँ इश्यूज सॉल्व करने के लिए कि यार इसमें क्या करना है। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम यू शुड हैव द करेज टू गो टू योर सीनियर्स एंड आस्क कि भैया मेरे को इशू आ रहा है, मेरे को बताओ कैसे करना है। दे आर वेरी हेल्पफुल इन मेनी कंपनीज। देयर इज अ चांस दे वुड हेल्प, बट I would suggest to do not depend on anyone. Try to figure out yourself ki what is the issue. Like I understood my first issue which was coming was I was not following proper format of prompt. तो जो prompt लिखना होता है वो एक format में लिखना होता है, तो मैं वो format follow नहीं कर रहा था। उसकी वजह से my output was hallucinating and I was just thinking for a whole day कि यार ये ऐसा क्यों output आ रहा है, ऐसा क्यों output आ रहा है। So after 2 to 3 days I got to my senior. He told me, okay, your format is not correct. So I corrected my format. After that correction of format, I got to know that, okay, prompting is not just about one. Prompting is not just about, you can say, one type of prompting. There are many styles of prompting, such as zero shot prompting. You can say one shot prompt. You can say chain of thought. तो उससे मेरा और एफिशिएंसी बढ़ा। उससे मेरे को पता चला कि ओके आई नीड टू डू मोर एक्सपेरिमेंट्स। सो ऐसे ऐसे आपको होराइजन ओपन होता है। So whenever you got into a company, necessarily it's not necessary that you have to write the code from scratch. But if you have to write the code from scratch, your learning curve would go exponential than those people who are using the written code already. Second is taking the second question, types of coders in a software company. अब ये और एक होता है कि दो टाइप का कोड होता है। एक तो वो कोडर जिससे सब लोग डरते हैं, जो कि बोलते हैं हार्ड कोडिंग। तो सबसे बड़ा मिथ मैं ब्रेक कर देता हूँ यही पे कि देयर आर वेरी रेयर कोडर्स which do hard coding in software industry. Hardly you can say 4 to 5%. Mostly do their code through large language model. Mostly large language model जो मेन चीज आता है वो आता है आपका कोड आर्किटेक्चर और कोड अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन of configurations. How do you do it efficiently? How do you use the efficient data structure? हम क्यों डीएसएलओ पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं एरेज, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज, क्यों ये सब पढ़ रहे हैं? द रीजन बीइंग इज हमको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को एलएलएम की इनपुट से है इंजीनियर सपोज, अगर मेरे को लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इनपुट देना है तो व्हाट इज द बेस्ट वे आई कैन प्रोवाइड इट द इनपुट कि वो समझ के सीधा मेरे को एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करे। तो दिस इज व्हाई वी आर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। पीपल आर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जस्ट रट्टा मार के चले जाते हैं, कंपनी में जाके बोल के आ जाते हैं, सर मैंने डीएसएलओ के इतने ऑपरेशन किए थे, इतने इतने एआई था। और फिर कंपनी में जाके डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, टास्क दिया मैनेजर ने मेरे को, 2 दिन नहीं हो गए, 3 दिन नहीं हो गए। बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। आपको अभी तक यही नहीं पता चला है कि शायद क्यों यूज करते हैं, क्यों क्यों यूज करते हैं। आपको अभी तक ये नहीं पता चला लिंक लिस्ट किस, कहाँ पे लिंक लिस्ट यूज करते हैं, कहाँ पे हैश मैप यूज करते हैं, कहाँ पे सेट यूज करते हैं। तो आपको उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। इफ यू डोंट नो द इंपॉर्टेंस, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन एन एफिशिएंट वे। तो सेकंड इस टाइप ऑफ कोडर्स इन सॉफ्टवेयर कंपनी, तो मोस्टली अगर आप देखोगे फ्रेशर लेवल से सीनियर लेवल से मैनेजमेंट तक एवरीवन यूजेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन दिस एरा। बिकॉज अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, आपसे अभी एक्सपेक्टेशन ऐसी लगाई जाती है कि आपको एक एलएलएम प्रोवाइड किया जाएगा, आपको जो प्रोजेक्ट करने को पहले 2 हफ्ते दिए जाएंगे वो कट के एक हफ्ता हो जाता है, और आपसे वन विद इन 1 वीक दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू कंप्लीट योर टास्क। सो एलएलएम तो सबको यूज करना ही है। अब वो कैसे एफिशिएंटली यूज करना है वो अपन अगले स्लाइड्स में देख रहे हैं, उसके एग्जांपल्स वगैरह देखने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एलएलएम एंड दे यूज इज कोडिंग दैट वाइब कोडिंग इज गुड और बैड। सी वाइब कोडिंग, आई कंसिडर वाइब कोडिंग एज a gray area. I do not consider it as good or bad. Vibe coding is nothing but कि आपने मतलब एलएलएम को एक इनपुट दे दिया और आप उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अब देखो इसमें भी बहुत टाइप ऑफ कोडर्स होते हैं। इसमें भी ऐसा होता है कि आप पहले कोड अब दोगे तो कोड वेरीफाई करके डालो। बिकॉज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी में कॉन्फिडेंशियल डाटा लोग डाल देते हैं, और हमारे कंपनी में भी बहुत लोगों को निकाला है जिन्होंने कॉन्फिडेंशियल डाटा डाला है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि what is need to be put into that large language model and what is not, because वो आपकी मदद के लिए दिया है। वो that is not for your, मतलब अगर उनको large language model यूज करना होता, why they have hired you? It's common sense. They have hired you to use that model efficiently. वो इसलिए दिया है because अगर वो नहीं होगा तो आपको लाइन बाय लाइन कोड लिखना पड़ेगा, which would take around 3 to 4 weeks। आपके पास एलएलएम है तो आप जो बेसिक कोड है, बेसिक कोड मतलब क्या हो गया कि मेरे को एक क्लास, मैंने एक फंक्शन बना दिया, अब मेरे को फंक्शन को क्लास में रैप करना है, मेरे को उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये चीज ऐसा है कि ये बेसिक है। बेसिक मतलब
दिस इज समथिंग विच कैन बी डन इन 10 to 12 मिनट्स, बट 10 to 10 मिनट्स में क्यों बर्बाद करूँ? मैं एलएलएम को एक प्रॉम्प्ट दूंगा, एम को एक प्रॉम्प्ट, मैं तो उसको प्रॉम्प्ट नहीं बोलूंगा, उसको एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि मैं भी उसको क्लास में रैप करके दे दे और यही ऑब्जेक्ट बना के दे दे, एंड इट विल क्रिएट मी दैट ऑब्जेक्ट. So that is the efficient use of vibe coding. और वाइब कोडिंग बहुत लोग यूज करते हैं कंपनी में, बहुत लोग अच्छे से यूज करते हैं, बहुत लोग बुरी तरीके से यूज करते हैं. एंड दैट इज द डिफरेंस कम्स विद अ गुड डेवलपर एंड बैड डेवलपर. गुड डेवलपर इज समवन हु यूज वाइब कोडिंग एफिशिएंटली, एंड बैड डेवलपर इज समवन कि आपको मिल गया तो आप कैसे भी यूज कर रहे हो. मैंने बहुत से दोस्तों को देखा है जावा में काम करते हैं, दे जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड और फिर वेरिएबल इधर हो गया, डेटाबेस का कनेक्शन उधर हो गया, और फिर गाली खाते हैं सीनियर्स का, फिर रात तक बैठेंगे 12 बजे तक, यार हुआ ही नहीं, मैंने 12 बजे तक काम किया. अरे तुमने काम नहीं किया भाई, तुम काम बिगाड़ के गए हो. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज एफिशिएंट यूज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर कोडिंग. अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है कि एफिशिएंट यूज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो भी एलएलएम को प्रोवाइड किया गया, समझो चैट एजेंट आपको कोई प्रोवाइड किया गया है, समझो आपको जीपीटी प्रोवाइड किया है, आपको कोपायलट प्रोवाइड किया है, आपको कोई क्लाउड प्रोवाइड किया है, तो उसका एफिशिएंटली कैसे यूज करना है, तो वो अपन अगले स्लाइड में देखेंगे. अगले स्लाइड में आपको पता चलेगा कि अच्छा, मेरे को अगर एक एलएलएम एजेंट दिया है, हाउ कैन आई यूज इट एफिशिएंटली. सो इफ यू कैन सी इन दिस स्लाइड, दो टाइप ऑफ कोडर होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में. पहला होता है एक डम्प पाइप कोडर. डम्प पाइप कोडर वो इंसान है कि भाई 10-12 चीजें रट लिया उसने एमएल में से, 10-12 क्वेश्चंस रट लिए हर एक डेटा स्ट्रक्चर में से, और आ गया कंपनी में. अब ये क्या करेगा, ये करेगा उसको कोड बेस मिलेगा, वो कोड को पास करेगा सीधा एलएलएम को. अच्छा, मैं एलएलएम को पास कर दिया, पास करके इंस्ट्रक्शन लिखेगा नॉर्मल, उससे जनरेट करेगा और उसको कॉपी पेस्ट करके कमिट मार के पुश कर देगा. दिस इज अ डम्प पाइप कोडर. ना, डम्प पाइप कोडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत गलत अप्रोच है, दिस इज एन ओके अप्रोच, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद डम्प पाइप कोडर इज, व्हेन आई टॉक अबाउट अ डम्प पाइप कोडर, यहाँ पर आपका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू इज, इन दिस केस यू हैव टू एक्ट एज एन प्रो वाइप कोडर. प्रो वाइप कोडर क्या होता है? प्रो वाइप कोडर इज नथिंग बट यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कोड, अंडरस्टैंड द फाइल्स, अंडरस्टैंड द वेरिएबल. सपोज आपके सीनियर ने आपको एक कोड बेस प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वो कोड बेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके फाइल्स को, उसके वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो. आप डीबी कनेक्शंस, इफ यू आर एन एआई इंजीनियर, यू आर अंडरस्टैंडिंग द डीबी कनेक्शंस, यू आर अंडरस्टैंडिंग द डेटाबेस, यू आर अंडरस्टैंडिंग द फ्लो, एमएल फ्लो का जो पाइपलाइंस होते हैं वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप प्रॉम्प्ट्स आइडेंटिफाई कर रहे हो. And next is you can understand, you have to, if you are an AI engineer, I think the most important thing is you have to build your context in a very efficient way. तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट वो चीज होती है कि आपको जो एआई इंजीनियर को इंस्ट्रक्शंस देना है, तो हाउ विल यू प्रोवाइड दैट इंस्ट्रक्शंस इन एन एफिशिएंट वे, नथिंग बट कॉन्टेक्स्ट. तो कॉन्टेक्स्ट आप कैसे देते हो? जैसे कि आई वुड शेयर यू एन एग्जांपल. मेरे को 3 वेरिएबल मैंने बाहर कैलकुलेट किए थे, एंड फ्रॉम दोज 3 वेरिएबल्स आई हैव टू प्रोवाइड a single entity as an context to LLM, because LLM को मैं 3 वेरिएबल दे नहीं सकता सीधा, बिकॉज अगर मेरे पास स्मॉल मॉडल है, इफ आई एम हैविंग अ स्मॉल मॉडल लाइक मिस्ट्रल, I cannot provide it with 3 variables. I can provide it with 3 variables, but what is more efficient? What is more efficient? Why should I provide it with 3 variables if I give it a small variable and I have all the 3 variables as a key value pair? So is this better or providing with 3 variables better? So that totally depends on you. So context printing जो है, that is very important. Fourth is examining the output. अब तक जैसे ही मैं एलएलएम को कोड देता हूँ, तो आई मस्ट एग्जामिन द आउटपुट, कि मेरे को पता होना चाहिए कि अच्छा, मैंने अगर उसको बोला है कि मेरे को डिवी जनरेट करके दे, मेरे को कॉन्टेक्स्ट दे, मेरे को कोड जनरेट करके दे, सो आई शुड वेरीफाई इट ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया उसको बराबर, या फिर आपने कनेक्शन नहीं बताया, आपको चलो कोड फाइल मिस कर गए, पूरा बैंड बज जाता है कोड का. इसलिए आई वुड रिकमेंड कि जो भी आप कोड के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करोगे, प्लीज डू इट फर्स्ट इन जुपिटर नोटबुक. और जो भी एलएलएम को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वेरीफाई इट वन, कि यार वन शॉट, मैं तो बोलता हूँ 2-3 बार वेरीफाई करो कि यार बराबर दिया है. वेरिएबल टाइप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वेरिएबल टाइप जहाँ सबसे ज्यादा फंसता है एक्चुअली. बिकॉज होता क्या है कि आप अपने वेरिएबल डिफाइन बाहर कुछ और के, एलएलएम अपने खुद का वेरिएबल बना देता है, वापस से वो बनाएगा, ग्लोबल बनाएगा, लोकल बनाएगा, इसके बाद कोडिंग इन क्लासेस. तो क्लासेस में भी ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल आता है, उप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, उप्स के कॉन्सेप्ट रट के जाते हो ना,
उसके कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ये आपको जाके इंडस्ट्री में समझता है। बिकॉज इंडस्ट्री में कोड इज रिटन इन कूप स्ट्रक्चर ओनली, क्लासेस और फंक्शंस में आपको कोड लिखना पड़ता है। उसके बाद यूज ऑफ एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर। अब एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर मतलब अगर मेरे को तीन चीजें स्टोर करनी है, तो मैं उसको किस में स्टोर करूँ? मैं उसको स्टैक में स्टोर करूँ, मैं उसको क्यू में स्टोर करूँ, मैं मेरे को क्या, मेरे को उसका प्रीवियस डाटा रखना है, क्या मैं उसको लिंक लिस्ट में स्टोर करूँ? तो यू शुड हैव एन गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटलीस्ट द बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स। क्या मैं उसको ग्राफ में स्टोर करूँ? जैसे कि अभी रैग हो गया, अभी बहुत से मेनी ऑफ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग पेज इंडेक्स। तो पेज इंडेक्स हो गया, पेज इंडेक्स किस पे काम करता है? आप देखोगे डीएफएस पे काम करता है। डीएफएस हो गया, ग्राफ की तरह काम करता है, वो अंदर 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 जाता जाएगा, उसको मिलेगा बेस्ट। इसमें भी मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ। सो अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैज बीन असाइंड टू मी, जिसमें मेरे को बाइलिंगुअल टेक्स्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करना था। बाइलिंगुअल टेक्स्ट मतलब मेरे को इनपुट में हिंदी और इंग्लिश दोनों टेक्स्ट आ रहे थे। तो आई हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बाइलिंगुअल टेक्स्ट। इसमें पहले वो लोग प्रॉम्प्ट यूज कर रहे थे, जिसका जो टाइम ले रहा था अराउंड 20 मिनट्स, और जिसका एरर रेट भी बहुत हाई था। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं उस पर 20,000 एग्जाम्पल्स रन कर रहा हूँ, तो 3,000 5,000 ऑलमोस्ट रॉन्ग आ रहे। तो व्हाट आई डिड वाज आई अंडरस्टूड ऑल द पैटर्न्स। मैंने पहले डेटा स्टडी के लिए टाइम लिया अराउंड 3 to 4 डेज। 3 to 4 डेज डेटा स्टडी के टाइम के बाद आई अंडरस्टूड कि ऐसा इसमें जो 9-10 पैटर्न्स है वही रिपीट कर रहे हैं। तो 9-10 पैटर्न्स में मैंने एक उसको बाइनरी सर्च और ट्री मिक्स करके एक डेटा स्ट्रक्चर टाइप कोड लिखा, जिससे वो सारे पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और उसके वजह से 99% जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो गए। 99% मतलब गिन के अगर मैं बात करूँ आपको, तो अगर मैंने वो टेस्ट किया था अराउंड 12,000 डाटा के लिए, और 12,000 में से अराउंड सिर्फ यू कैन से 7 to 8 एग्जाम्पल्स वो काम नहीं किया। दो सा क्रिटिकल वंस, उतना ग्रे एरिया छोड़ना पड़ता है। पर टाइम कितना लिया उसने? 0.01 सेकेंड। तो कैन यू बिलीव द एफिशिएंसी? On one side it's taking around 20 minutes and on one side it's taking around 0.01 second. My God, अगर आपको बड़ा सिस्टम आ गया तो उस साइड तो फट जाएगा कोड, इस साइड में चलता रहेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डम्प वाइप कोडर एंड अ प्रो वाइप कोडर। तो इफ यू आर एन वाइप कोडर, कि आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है कि यार भैया मैंने तो डर लग रहा है, मैंने तो सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना है, कोडिंग आता नहीं है। सी, कोडिंग आता नहीं है, कोडिंग रियलिटी बताऊँ तो आधे से ज्यादा लोगों को नहीं आता कंपनी में। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज, उधर आपको एक चीज प्रोवाइड कर रही है जिसको बोलते हैं एलएलएम। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का आप कितना एफिशिएंटली यूज करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकंड इज क्लीन कोड। क्लीन कोड मतलब क्या होता है कि आपने जो कोड लिखा है, मैंने क्लासेस में लिखा है, मैंने फंक्शंस में लिखा है, मेरे को पता होना चाहिए मैंने क्या लिखा है। ऐसा नहीं कि मैं अंधाधुंध कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल सी मार रहा हूँ, कंट्रोल भी मार रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल भी मार रहा हूँ, नहीं। तो हर कोड के ऊपर कमेंट रहना चाहिए, या फिर हर कोड लाइन जो आपने लिखी है वो पता होना चाहिए कैसे क्या कर रहा है। अच्छा, अगर मैं डाटा स्क्रैप कर रहा हूँ, मेरे को वेबसाइट भी है, मैं वेबसाइट से डाटा स्क्रैप कर रहा हूँ, तो डाटा स्क्रैप करने के लिए मेरा एक्सपाथ कहाँ है, मेरे एक्सपाथ से मैं कौन कौन सा डाटा स्क्रैप कर रहा हूँ, दैट शुड बी नोन टू मी। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में अभी थोड़ा सा अपन थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेने वाले हैं। तो दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो मैंने कंपनी में सॉल्व किए हुए हैं, हालांकि मैं उनको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट मैंने उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से रखा है, अपने हिसाब से रखा है। तो आपको भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं सॉल्व करूंगा, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई वुड प्रोवाइड टू यू, जो अपन अगले वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि मैं इसको अप्रोच कैसे करता। So let's start with the first problem statement. The problem statement is you are an AI engineer working in a company. ई कॉमर्स कंपनी में हो, स्टॉक वाइप का इशू है। स्टॉक वाइप मतलब आपका स्टॉक खत्म होने को आया है। तो यू हैव टू बिल्ड अ चेकलिस्ट जनरेटर फॉर ई कॉमर्स कंपनी विच वुड डू द फॉलोइंग टास्क। पहली बात तो स्क्रैप करना चाहिए रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टॉक बचा है उसका इन्फॉर्मेशन पहले तो मेरे को स्क्रैप करके लाओ। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स है वो डीबी में से फैच करके लाओ। प्रोडक्ट्स मतलब अभी जो भी स्क्रैप किया है मैंने डाटा, अब उनके प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट को डीबी में से स्क्रैप करके लाओ, डीबी में से खींच के लाओ। उसके बाद रिटर्न प्रोडक्ट्स विच आर आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम। जो प्रोडक्ट्स है जिनका एक्सपायरी डेट बहुत पास आ रहा है, तो मेरे को मतलब बेचने ही है, जिनको मैं सेल पे डिस्काउंट पे बेचूंगा, उन प्रोडक्ट्स को मेरे को वो प्रोडक्ट्स चाहिए। अब इसको मैं कैसे अप्रोच करूंगा? एज एन एआई इंजीनियर आप कैसे अप्रोच कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको स्क्रेपिंग फ्रेमवर्क पे रिसर्च करना पड़ेगा। स्क्रेपिंग फ्रेमवर्क पे रिसर्च मतलब कि यार स्क्रेपिंग में किससे करूँ, ब्यूटीफुल सूट से करूँ, स्क्रेपी से करूँ, या फिर
मेरे पास और कोई लाइब्रेरी है, फिर सेलेनियम यूज करूँ, किससे स्क्रिपिंग करूँ कि मेरे को एफिशिएंट जो डाटा चाहिए, जैसा ये वेबसाइट से, जो प्रोडक्ट के बारे में है, या फिर कहीं से भी, तो वो मैं खींच के लेके आऊँ। सेकंड इज इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टोरिंग ऑफ रिजल्ट। स्क्रैप तो कर लिया मैंने, बट स्क्रैप करके मैं स्टोर किस फॉर्म में करूँ? तो आखिर में मेरे को पास करना है वो, और मेरे को उसमें मेन मेन मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट चाहिए। मेरे को उसको इस तरीके से स्टोर करना पड़ेगा कि आई हैव सेपरेट फील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज मेरे को प्रोडक्ट्स नाम की फील्ड को डीबी में जाकर सर्च भी करना है, तो आई आई नीड टू हैव एन सेपरेट फील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ दिस क्रिएटिव। तो स्क्रीपिंग में मेरे पास एक कॉलम होना चाहिए प्रोडक्ट्स नाम का, ताकि मैं वो प्रोडक्ट्स कॉलम को डीबी में जाके ढूंढ सकूं कि यार प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स है तो ये प्रोडक्ट्स मेरे को ढूंढ के लाओ डीबी में, क्या ये प्रोडक्ट्स डीबी में है। My second stage would be identifying the data. First step would be identifying the data structure. तो डेटा स्ट्रक्चर मैंने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर समझो, मैंने डेटा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया हैश मैप में, या फिर समझो ले लिया मैंने प्रोडक्ट, डेटा फ्रेम ले लिया, डेटा फ्रेम में मेरे को मैंने प्रोडक्ट्स है। अब प्रोडक्ट्स से मैं क्या लेके आऊंगा, प्रोडक्ट्स से मैं को डीबी में लेके आना है, डीबी कनेक्शन। तो यार सबसे पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा डीबी कनेक्शन। डीबी कनेक्शन क्या है, डीबी कनेक्शन कैसे किया है, कौन सा डीबी यूज किया है, मोंगो यूज किया है, एसक्यूएल यूज किया है, ओरेकल यूज किया है, कौन सा डीबी यूज किया है, टाइप ऑफ डीबी यूज। और उससे मेरे को देखना पड़ेगा टेबल्स। टेबल्स में जाके मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे इसमें प्रोडक्ट कहाँ डाला है, प्रोडक्ट्स जहाँ पर भी डाला है। अब उससे मेरे को प्रोडक्ट्स खींच के लाने पड़ेंगे। अब प्रोडक्ट्स मैंने एक बार खींच लिए, मेरे पास डाटा वेबसाइट पे आ गया प्रोडक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन का। अब मेरे को क्या करना है, प्रोडक्ट्स विच आर आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम। उसको आप दो वे में अप्रोच कर सकते हो। अगर आपके पास फील्ड है यहाँ पर, ये आइडियल प्रोडक्ट्स जो टाइम से है, जो कि एक्सपायरी डेट और स्टार्ट डेट है आपके पास, तो आप सीधा एक लिस्ट रिटर्न कर सकते हो कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स है तो आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम है। बट इज दिस करेक्ट वे? आई वुड से नो। एज एन एआई इंजीनियर यू शुड ऑलवेज थिंक अ वे अहेड। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज कर सकता हूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे यूज करूंगा, मेरे पास तो डेटा, मैं ये एक चीज तो लेके आ सकता हूँ जो कि प्रोडक्ट इसका आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम, कैसे लेके आऊंगा? मेरे पास प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट है, प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट है टेबल में कंसिडरिंग, या मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरिंग डेट अगर मेरे पास है, मैंने प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन स्क्रैप किया हुआ है, अब मेरे को ये चीज पता है, दो चीज मेरे पास है, एक है प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन, एक है उसका मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्ट डेट। अब मैं प्रॉम्प्ट में क्या लिखूंगा, प्रॉम्प्ट में मैं लिखूंगा कि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें से ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ही क्रिटिकल है, जिनको मेरे को खत्म करना ही करना है, और जिनका जो प्राइस रेशियो है, प्राइस रेशियो मतलब कि मेरे को अगर मैं इनको बेचूंगा और मेरे को प्रॉफिट जनरेट ज्यादा होगा, तो ऐसे प्रोडक्ट्स मेरे को रिटर्न करके दे सबसे पहले। तो दैट इज द वे यू थिंक इन एन इंडस्ट्री। कि यार ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरे को काम करना है तो मैं लिस्ट रिटर्न कर दूंगा प्रोडक्ट्स का, विच आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम, काम खत्म। नो, यू शुड थिंक अ वे अहेड, थोड़ा एफिशिएंटली सोचो कि यार मेरे पास जो डाटा है, मेरे पास जो कॉन्टेक्स्ट है, उससे मैं कैसे एलएलएम से एक बेटर रिस्पॉन्स जनरेट करके दूँ। तो दिस इज द वे यू अप्रोच अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हम में से एक बंदे ने सॉल्व किया था। हालांकि उसका अप्रोच थोड़ा अलग था, मेरा अप्रोच थोड़ा अलग होता है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वजह से, एंड दैट वुड वेरी फॉर यू आल्सो, बिकॉज मे भी हो सकता है आप मेरे से अच्छा अप्रोच लेके आओ, मे भी हो सकता है कि आप ब्रूट फोर्स से जाओ। बट ऑलवेज whenever you are solving a problem, think about the brute force approach, think about the best approach, think about the बेटर अप्रोच। तो ये तीन अप्रोच अपने होने चाहिए। तो इस चीज में ब्रूट फोर्स क्या अप्रोच होगा, ब्रूट फोर्स ये होगा कि मैं कोई भी वेबसाइट से स्क्रैप कर लूँ नॉर्मल, इसमें मेरे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं स्क्रैप कर लूंगा इन्फॉर्मेशन, मैं प्रोडक्ट उठा के लेके आऊंगा और वो प्रोडक्ट रिटर्न करूंगा। बेटा अप्रोच क्या है, बेटा अप्रोच कि मैं स्क्रैपिंग को भी एफिशिएंटली कर यूज करूंगा, मैं प्रोडक्ट को भी एफिशिएंटली यूज करूंगा, और जो कॉन्टेक्ट मेरे को मिल रहा है उसका मैं प्रोडक्ट को रिटर्न करूंगा। तो ये बेटर अप्रोच हो गया। क्यों? बिकॉज इस बार मैंने स्क्रिपिंग को डिफाइन कर दिया। इस बार मैंने स्क्रिपिंग का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको बेटर वे में लिखा है। और बेस्ट अप्रोच क्या होगा, बेस्ट अप्रोच है कि मैंने स्क्रिपिंग भी बेटर वे में लिखा है, मैंने प्रोडक्ट भी बेटर वे में सेट कर दिया, और इन दोनों को कॉन्टेक्स्ट भी मैंने प्रॉम्प्ट को ऐसे दिया कि मेरे को प्रॉम्प्ट वो चीजें सबसे पहले लेके आया प्रायोरिटी में, कि जो चीजों की स्टार्ट डेट और एक्सपायरी डेट, वो मेरी डेट ऐसी है कि वो चीज मैं उनको सबसे पहले खत्म करूँ, आई हैव टू फिनिश दो प्रोडक्ट्स फर्स्ट, so that I incur the minimum loss, because आखिर में तो लॉस में जाने ही वाला हूँ मैं, बट मिनिमम लॉस कैसे अटेन करना है। So that is the way you work efficiently in an organization. So I have another statement, problem statement for you.
एंड दिस इज अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये जो मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था वही है। You are an AI engineer. You have been benchmarked, tasked us to benchmark text to SQL model. List down a top to bottom approach of how will you do this task. टास्क कंप्लीशन टाइम आपका 2 वीक्स है, रिसर्च टाइम एंड इम्प्लीमेंटेशन टाइम इंक्लूडेड। मतलब 2 वीक्स नहीं, आपको तो मेरे को नीचे बताना है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता पाओ तो। अगर नहीं बता पाओ तो वी वुड डिस्कस दिस इनटू द नेक्स्ट वीडियो। रिसर्च टाइम और इम्प्लीमेंटेशन टाइम इंक्लूडेड है 2 वीक्स में आपका। आपको करना क्या है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो टेक्स्ट टू सीक्वल मॉडल्स है, पहली बात तो उन पर रिसर्च करना है। दूसरी बात, आपको उन पर रिजल्ट्स लेके आने। लोकल एलएम्स आपके पास 3 है, मिस्ट्राल, ओएसएस और क्वेन। और मिनिमम 3 एलएम्स, मैक्सिमम 4 एलएम्स हर इन केस। और आपको इन सारे एलएम्स का बेंचमार्किंग करना है। दिस इज योर फर्स्ट टास्क एज एन फ्रेशर। आप जब एंटर मारते हो तो आपको इसी टाइप के टास्क मिलते हैं स्टार्टिंग में आपको उतना कोड लेवल नहीं घुसाते। स्टार्टिंग में आपको रिसर्च लेवल टास्क देंगे, उसके बाद आपको कोड लेवल घुसाएंगे। ओके, so this is the one task. You can comment to your solution below, or you can also, totally dependent on you. uh, I would discuss this problem statement in our next video, जो कि around मतलब next weekend आएगी possibly, या फिर रिस्पॉन्स अगर अच्छा हुआ तो मे बी 2 to 3 days में आएगी। बिकॉज द प्रॉब्लम इज people see these educational videos, people see these videos of information, but जनरली इनको व्यूज वगैरह उतने नहीं आते, बेसिक व्यूज आते हैं। सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो कि जिनको पता नहीं है कि भाई कॉर्पोरेट में कैसा काम होता है। डरे हुए हैं कि भाई मेरे को तो निकाल देंगे 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। बिकॉज वो डर मेरे में भी था। झूठ नहीं बोलूंगा, हर किसी में होता है। बट आई वुड टेल यू द रियलिटी कि थिंग्स गेट बेटर, कि आपको पता चलता है कॉर्पोरेट में जब आप घुसते हो कि आप अकेले नहीं हो जिसको कुछ नहीं आता। बहुत से लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता, जिनको आपसे भी ज्यादा नहीं आता है। उसमें से कुछ तो आपके ऊपर ही काम कर रहे होंगे। तो फिर आपको ऑटोमेटिकली डर धीरे धीरे कम होता जाता है। बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री इज नॉट इजी वन। आपको बहुत टाइम बैठना पड़ेगा। रिसेंटली मेरे को भी 2-2 दिन 3-3 दिन, 10-10 रात को, 10-10 11-11 बजे तक बैठना पड़ेगा। डिस्पाइट बीइंग अ फ्रेशर मेरे को बैठना पड़ा, बिकॉज हमारा कोड्स आ रहे थे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाने के बाद बहुत इश्यूज आते हैं, तो बैठना पड़ता है कभी कभी। तो मतलब ये चैलेंजेस है, ये तो आते रहते हैं, मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। So this is something which you have to do on your own. If you think you can answer this into comment, we will discuss this in the next week. So that's all for this video. Thank you.